Good morning, students. In last video lecture, we have discussed how to find LCM. Today, we are going to do remaining questions of exercise 3.7. So, up to question number 5th we have discussed. Now question number 6th. Traffic light at different 3 road crossing changes after 48 सेकेंड. यानी कब चेंज होता है? 48 सेकेंड के बाद, then 72 सेकेंड, then 108. If they change simultaneously at 7 am, at what time they will change simultaneously again? यानी कि जो क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया? क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया कि 3 ट्रैफिक लाइट है. जो पहला ट्रैफिक लाइट है 48 सेकेंड्स के बाद दोबारा जलता है. दूसरा है जो 72 सेकेंड एंड थर्ड वन इज 108 सेकेंड के बाद. तो हमें बताना है कि अगर वो एक बार 7 बजे जले हैं तो दोबारा तीनों लाइट एक साथ कब जलेंगे. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द एलसीएम. नाउ सी क्वेश्चन नंबर ए. फर्स्ट टाइम पीरियड is 48 second. Second time period is 72 second. Third time period is 108 second. ये हो गया. Now LCM of 48 72 108 is given by. Now 48 24 2 12 2 6 2 3 2 into 2 into 2 into 2 into 3 2 की पावर 3 into 3 की पावर 1. Now 72 2 36 2 18 2 9 3 3. 72 is 2 into 2 into 2 into 3 into 3. That will be 2 की पावर 3 into 3 की पावर 2. Now 108. 2 54 2 is 27 3 9 3 3. So 108 will be 2 into 2 into 3 into 3 into 3. That will be 2 की पावर 2 into 3 की पावर 3. LCM equals to 2 की पावर 4 into 3 की पावर 3. 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3. That is 16 into 27. 27 into 16 will be 42. 4 12 plus 7 plus 4 9 3 2 4. That will be 432 seconds. कितने हो गए? 432 seconds के बाद दोबारा से वो रिंग करेंगे. Means 432 second can be written as 7 minute 12 second. So when they will simultaneously, so next टाइम विल बी, नेक्स्ट टाइम कितना होगा? 7 AM प्लस 7 मिनट 12 सेकेंड. तो क्या हो जाएगा? 7 hours 07 12 AM. यानी कब होगा? 7:07 पे. 7:07 पे होगा. Now we will see question number 7.
three tank contain 403 liters, 434 liters and 465 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity of container that can measure diesel of 3 containers in exact number of tanks. So यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि इंफॉर्मेशन दिया गया है कि 3 कंटेनर है, एक में 403 लीटर है, दूसरे में कितना है 434 और तीसरे में 465 है डीजल। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी मैक्सिमम वर्ड आ गया। सो वी हैव टू फाइंड एचसीएफ। सो क्वेश्चन नंबर 7, कैपेसिटी ऑफ containers are 403 liter, 434 liter and 465 liters. Capacity, maximum capacity of container is given by HCF of 403, 434, 465. Now we will find HCF by long division method. कौन से मेथड से हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पे HCF? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सो 434 divided by 403. So 1 403 31 403. 1 31 9 3 3. So HCF of 403 and 434 is 31. क्या आ गया? HCF 31. अब क्या करेंगे? इसके इन दोनों के HCF से अब हम किसका निकालेंगे? 465 का। अब देखते हैं 31 465 1 31 15 5. So 55 cancel. So here HCF is 31 liter. So HCF of 403 434 465 is 31. So what will be the maximum capacity of the container? The maximum capacity of container will be 31 liters. क्या होगा? 31 liter. Whenever in question you have to find the maximum or largest number, in that case you have to find, क्या तुम्हें फाइंड करना होगा? HCF. Whenever is the minimum या small number you have to find LCM. Now see question number 8. Find the least number which when divided by 16, 15, 18 leaves remainder 5 in each case. हमें बताना है कि 6, 15 और 18 से हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जिससे हम डिवाइड करेंगे तो उस केस में हमेशा रिमाइंडर 5 आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 में वी विल फाइंड द एलसीएम, और उस एलसीएम में रिमाइंडर 5 आने के लिए हम हमेशा क्या ऐड कर देंगे? 5. क्या ऐड करेंगे? 5. Now LCM of LCM of 6, 15 and 18. What will be the LCM of 6, 15 and 18? See, 6 2 into 3, 15 3 into 5,
18, 2 into 3 into 3, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2. So LCM will be, क्या हो जाएगा LCM या 2 की पावर 1, 3 की पावर कितना है 2 मैक्सिमम एंड 5 की पावर 1. So 2 into 3 into 3 into 5. So LCM will be 90. क्या हो गया LCM will be 90. Now required number is LCM of 6, 15 and 18 plus 5. So 90 plus 5. So required number is 95. हमारा क्या रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया 95. Now question number 9. Find the smallest 4-digit number which is divisible by 18, 24 and 32. हमें स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर फाइंड करना है जो 18, 24 और 32 से डिविजिबल है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 18, 24 और 32 का एलसीएम फाइंड करेंगे. क्या फाइंड करेंगे इन क्वेश्चन नंबर 9 we have to find LCM of 18, 24 and 32. So what will be the prime factorization of 18? 18 का prime factorization होगा 2 into 3 into 3, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2. Now next 24. 24 में क्या होगा 2 into 2, 4 2 जा 8 into 3. So 2 की पावर 3 3 की पावर 1. अब 32 का कैसे होगा 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 into 2 into 2. That will be 2 की पावर 5. Now LCM. अब किसका देखेंगे हम LCM. Now we will find the LCM of 18, 24 and 32. ये हो गया. क्या आएगा हमारा LCM हमारा यहाँ पे LCM आएगा 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 2 की मैक्सिमम पावर है 5 और उसका 3 की मैक्सिमम पावर है 2. नो अनदर नंबर. So 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3. अब क्या हो जाएगा 32 into 9. 32 into 9 will be 18, 1 and 27. 288. अब हमें क्या फाइंड करना है 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर. तो हमारा 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 4 डिजिट smallest number is 10,000. अब क्या करेंगे 10,000 को इससे डिवाइड कर देंगे. क्या करेंगे इससे हम डिवाइड करते हैं. सो 288 मल्टीप्लाई 3. अब क्या आ जाएगा हमारा 4, 2, 24, 2, 26, 2, 6 and 8. Remainder will be 136. क्या हो गया रिमाइंडर हमारा 136. Now required number will be रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा
4 digit smallest number minus remainder plus LCM of नंबर्स, जो नंबर्स है उसका एलसीएम। तो हमारा 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 4000, रिमाइंडर कितना है 136 प्लस 288, तो क्या हो जाएगा 864 प्लस 288 क्या हो जाएगा 2, 14 प्लस 1 15, 1 10 11। So the smallest 4 digit which will be divisible by 18, 24, 32 will be 1152। अगर हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करने के लिए, अगर स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड करने के लिए बोला जाता है तो उसमें क्या करो, एलसीएम ले लो और जो स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर है उसको डिवाइड कर दो वो गिवन नंबर से प्लस एलसीएम कर दो। लेकिन ग्रेटेस्ट डिजिट बोला जाएगा उस केस में क्या करो, जो ग्रेटेस्ट डिजिट आएगा उसमें से रिमाइंडर माइनस कर देना। क्या माइनस कर देना, रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 10 में नंबर्स क्या है हमारे पास, पहले लिख लेते हैं ए 9 and 4, बी 12 and 5, सी 6 and 5, D 15 and 4। हमें इन चारों नंबर, इस चारों पेयर्स का हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। ऑब्जर्व ए कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम इज द एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इन ईच केस। हमें इसमें एलसीएम फाइंड करना है, उसके बाद हमें एक देखेंगे, ट्रेट देखेंगे, मींस ए सिमिलर काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज दैट कि जो हमारा एलसीएम आएगा वो किसके प्रोडक्ट ऑफ इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब देखते हैं एलसीएम ऑफ 4 और 9 का। 4 प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2, 2 की पावर 2। 9 का क्या हो जाएगा 3 into 3, 3 की पावर 2। क्या हो गया 3 की पावर 2। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 4 और 9 का, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 into 9 दैट विल बी 36। अब देखो हम नंबर ये n1 है, n1 into n2 क्या हो जाएगा 9 into 4 दैट विल बी 36। यस। अब यहां पे देखते हैं 12 का 2 into 2 into 3 और 5 का क्या होगा 5। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 into 2 into 3 into 5, तो ये हो जाएगा 60। और n1 into n2 क्या हो जाएगा 60। n1 into n2 क्या हो जाएगा 60। अब तीसरा देखते हैं सी। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 into 3 क्या होगा, और 5 का 5। एलसीएम क्या हो जाएगा 2 into 3 into 5 दैट इज 30। और n1 into n2 क्या हो जाएगा 30। अब 15 और 4 का देखो, 15 का क्या होगा 3 into 5, 4 का क्या होगा 2 into 2, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 into 2 into 3 into 5 that will be 60। और n1 into n2 equals to 15 into 4 that is 60। नाउ हमारे सारे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि सारे नंबर्स का जो एलसीएम आ रहा है वो किसके इक्वल्स हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। जो क्यों, क्योंकि 9 और 4, 12 और 5, 6 और 5, 15 और 4 में क्या है, कॉमन फैक्टर इज ओनली 1। इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 है। और सो इन लोगों इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स। व्हाट वी विल से, दे आर को प्राइम नंबर्स। क्या है, को प्राइम नंबर है। इसीलिए क्या हो गया कि इनका एलसीएम यहां पे हम लिख सकते हैं, इफ नंबर्स आर को प्राइम नंबर। क्या है, को प्राइम नंबर, देन एलसीएम एंड देयर प्रोडक्ट will be सेम। क्या हो जाएगा, जब नंबर्स को प्राइम नंबर देन देयर एलसीएम एंड प्रोडक्ट विल बी सेम। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11th। This is the last questions of the exercise and chapter 3 also. Find the LCM of the following number। इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है, in which one number is a factor of another। क्या है, वन फैक्टर इज, क्वेश्चन नंबर 11 है, 11th है। पहला है 520, बी क्या है 618, सी क्या है 1248, डी है 945। तो सबका हम एलसीएम फाइंड करते हैं, और क्या होगा, here 5 into 1 20, 2 into 2 into 5 क्या हो जाएगा, LCM will be 2 into 2 into 5, that will be 20। यहाँ पे देखते हैं 6 का क्या होगा, 2 into 3, 18 का 2 into 3 into 3, so LCM will be 2 into 3 into 3, that will be 18। और यहाँ पे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 into 2 into 3, और 48 का हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 8, 16 into 3, so LCM will be 2 into 2 into 2 into 2 into 3, that will be 48। अब यहाँ पे 9 का क्या होगा, 9 का होगा 3 into 3, 45 का होगा 3 into 3 into 5, so LCM will be 3 into 3 into 5, that will be 45। तो यहाँ पे क्या है कि जो गिवन नंबर्स है उसी में से एक क्या एलसीएम बन रहा है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन अनदर नंबर इज द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। जब अनदर नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर होगा, then it is possible that the another number will be LCM। यानी जब हमारे पास दो नंबर गिवन है और उसमें से एक नंबर क्या है कि दूसरे नंबर का फैक्टर होगा, तो उस केस में क्या होगा कि जो एलसीएम होगा, जो बिगेस्ट नंबर है जो फैक्टर नहीं है यानी उसका अनदर फैक्टर है, जैसे 20 और 5 और 20 में क्या है 5 फैक्टर है, 20 का फैक्टर 5 है, तो 20 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। 6 और 18 में क्या है, 6 किसका फैक्टर है 18 का, तो 18 एलसीएम हो गया। 12 और 48 में किसका हो गया 48 एलसीएम हो गया। 9 और 45 में क्या हो गया 45। सो कंप्लीट एक्सरसाइज 3.7 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 11 in your homework. Thank you. Have a nice day.